So guys, let's continue with the thermochemistry part 2, that is lecture 12. In lecture 11, we discussed what is the meaning of standard change in enthalpy. And again, I'm repeating it, that standard change in enthalpy is the change in enthalpy accompanying with the chemical reactions. Where it is a gas involved in it, it should be at 1 bar pressure, that is 10⁵ Pascal or 0.987 atm. And if it is a solution, it has to be maintained at 1 molar at 298 Kelvin. And at that time, the change in enthalpy will be called as standard enthalpy of the chemical reaction. Now we are going to discuss 4 chemical reactions here: formation reaction, combustion reaction, neutralization reaction, and also the standard bond energy. ये 4 एनर्जी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं formation reaction. Okay, so formation reaction के लिए जो enthalpy आएगी, the standard enthalpy will be called as, for formation reaction, the standard enthalpy will be called as standard enthalpy of formation. Now standard enthalpy of formation is denoted as delta FH naught. Okay, that is the standard enthalpy of formation. ऐसा denote करते हैं. Now what is the meaning of formation reaction? ये बात आप लोग समझ लेना कि standard enthalpy of formation is basically, it is basically the enthalpy change, there is a change in heat content, change accompanying formation of one mole. याद रखना, 1 mole आपको बनाना है, 1 mole of compound from its constituent elements. मतलब आपको कंपाउंड बनाना है एलिमेंट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं. सपोज इफ आई वांट टू मेक CO2 gas, so the formation reaction of CO2 gas will be C solid plus O2 gas gives CO2 gas. Now this time the heat involved in this reaction, heat involved जो हो रही है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो यहां पर अगर मैं डेल्टा H वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान देना, so delta H value will be equal to minus 393.5 kilojoules. Okay, सडन एंथैल्पी इस रिएक्शन का. अच्छा, यहां पर मैंने CO2 बनाया 1 मोल. ये CO2 मैं ऐसा भी बना सकता हूं, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस. देखो यहां पर भी बन गया, ये भी रिएक्शन हो गया. बट दिस रिएक्शन व्हिच आई एम राइटिंग हियर, इसमें CO2 बन रहा है, बट दिस इज नॉट अ फॉर्मेशन रिएक्शन, बिकॉज फॉर्मेशन रिएक्शन क्या बोलता है कि यू हैव टू मेक 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. तो याद रखना, जब भी आप जो भी कंपाउंड बनाओगे वो उसके एलिमेंट से बनाना, नॉट फ्रॉम अनदर कंपाउंड यू आर मेकिंग अ कंपाउंड. सो कंपाउंड से कंपाउंड बना वो फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होता. सो याद रखना, दिस इज नॉट अ फॉर्मेशन रिएक्शन. ओके, आई एम राइटिंग हियर, नॉट अ formation reaction. This is a correct formation reaction for CO2. So you are making element with the constituents, making a compound with a constituent element, then only it's a formation reaction. You keep this in mind, very important part. कि formation reaction क्या होता है? कि formation reaction is that reaction where you make a particular compound with its constituent element. Then only the heat involved in the reaction, the heat involved in the reaction is called as heat of formation. और अगर वो standard condition पे measure किया गया तो उसको standard heat of formation बोलेंगे. So हर reaction formation reaction नहीं होता. फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए आपको जो भी कंपाउंड बनाना है उसके रिएक्टेंट्स हमेशा एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू मेक अ मीथेन, CH4 गैस, दिस इज अ प्रोडक्ट. सो मीथेन में 2 एलिमेंट है, C and H. तो C का नेचुरल स्टेट सॉलिड है 1 मोल, क्योंकि 1 मोल ही है, और हाइड्रोजन 4 है. तो हाइड्रोजन का नेचुरल स्टेट क्या है? H2 गैस. सो 2 moles of H2 gas, this give you a methane gas. Now this is a proper formation reaction for methane because you made methane by using their constituent elements. याद रखना, अगर आप एलिमेंट्स यूज नहीं कर रहे हो
कंपाउंड यूज करके दूसरा कंपाउंड बना रहे हो तो उसको फॉर्मेशन नहीं बोलते. सो नाउ यू राइट डाउन कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन इज 70 प्लस 74.8 किलो जूल. सो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि फॉर्मेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है. सो remember this point कि delta FH naught या delta FH can be exo और कैन बी एंडो. दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है. सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि बाय कन्वेंशंस वी कैन राइट डाउन कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर एनी सब्सटेंस, ओके, in their elemental state is always taken as 0. So more स्टेबल स्टेट उस सब्सटेंस का. अब ऑक्सीजन का सबसे स्टेबल स्टेट क्या है? O2 है. हाइड्रोजन का क्या है? H2 है. ठीक है. ओजोन का क्या है? O3 है. सल्फर का क्या है? S8 है. ग्रेफाइट का क्या है? C है. सो इन दैट केस द एलिमेंटल स्टेट अगर आया तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा. मतलब अगर मैं यहां पर लिख दूं, if I write down here that heat of formation of hydrogen or oxygen or ozone or acid और P4, ये सब कौन से स्टेट हो रहे हैं सब्सटेंस के? these are basically elemental state या कार्बन इन ग्रेफाइट स्टेट. ओके, ये सब इनके एलिमेंटल स्टेट है. I2, Cl2, Br2, ब्रोमीन का Br2 होता है. तो ऑल दिस केस में द heat of formation is taken as 0. conventionally is taken as 0 because they are the stable standard state. तो उसके अंदर कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, जो ये बताता है कि इस कंडीशन में कंपाउंड बहुत स्टेबल है. ओके, अच्छा, कभी अगर कैलकुलेशंस के लिए हम लोग कैसा यूज करेंगे? फॉर मोलार कैलकुलेशंस ऑफ अ रिएक्शन, हाउ विल यू यूज इट? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो. आई विल क्लियर दिस थिंग. For calculation you have to remember this point कि heat of reaction can also be calculated. Standard heat of reaction can also be calculated by using this formula: summation of heat of formation of product minus summation of heat of formation of reactant. आप ये फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर हीट ऑफ रिएक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया है हमको. ये क्वेश्चन ऐसा दिया है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है कैलकुलेट करने के लिए. ध्यान देना इधर पे. या तो फिर समझो हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है क्वेश्चन के अंदर. ओके, सो दे हैव गिवन अस दैट कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन क्या दिया है? C2H4 gas plus 3O2 gas gives 2 CO2 gas plus 2H2O gas. ओके, now इसके अंदर हम लोग ने क्या मेंशन करके दिया? हम लोगों को लोग ने मेंशन करके दिया है कि डेल्टा FH नॉट फॉर C2H4 is plus 38 kilojoules per mole. Okay, then they have mentioned delta FH naught for CO2, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है हम लोगों को. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 given in the question is minus 393.5 kilojoules per mole. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी दिया होगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये भी दिया हमको. दैट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज minus 249 kilojoules per mole. You need to calculate डेल्टा H, हीट ऑफ द रिएक्शन मतलब डेल्टा RH नॉट, या तो फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन. सो फॉर दिस रिएक्शन delta H naught of the reaction will be equal to summation of heat of formation of product minus summation of standard heat of formation of reactant. अब reactant में O2 भी आएगा, but O2 उसके elemental state में, तो उसका वैल्यू आपको 0 लेना होगा. So we can write down here कि प्रोडक्ट्स ये है, कितना मोल्स है? 2 moles and 2 moles. So we can write down, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा 2 moles of heat of standard heat of formation of CO2 plus 2 moles of standard heat of formation of H2O minus standard heat of formation of C2H4. मैंने ऑक्सीजन नहीं लिया क्योंकि वो 0 होगा.
सो ये वैल्यू विल बी 2 इंटू CO2 का वैल्यू कितना है -393.5 प्लस 2 इंटू वाटर इज -249 माइनस प्लस 38 किलो जूल्स पर मोल। ये किसका वैल्यू हो गया? प्लस 38 किलो जूल्स पर मोल का C2H4 का वैल्यू हो गया। नाउ व्हेन यू डू दिस, do the calculation, you get a value of delta H naught reaction that comes to around 1323 kilojoules. ये पूरे रिएक्शन का हीट हो गया। So you can use this formula of heat of formation to easily calculate, but याद रखना कोई भी एलिमेंटल स्टेट का heat of formation 0 हो जाएगा। ओके, सो हम लोग ने स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन देख लिया है, अभी हम लोग जाएंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन पे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। तो B will be standard enthalpy of combustion. Now standard enthalpy of combustion is simply denoted by the formula delta CH naught. अब ये क्या होगा? सिंपल बात है, it is a heat change accompanying a reaction when 1 mole of substance is completely burned with oxygen. Burned with oxygen matlab it is completely undergoing which reaction? It is completely undergoing chemical reaction. So we can write down here, it is nothing but the enthalpy change with the complete accompanying the complete combustion matlab heating of any substance in the presence of oxygen of 1 mole of substance, ठीक है, in excess of oxygen. That is a combustion reaction. And everyone has to remember that delta CH naught is always exothermic. मतलब वो हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब combustion is a reaction where the heat energy are evolved from the system. Okay, and combustion क्या होगा? Heating of any substance in the presence of oxygen. और मैंने आपको बताया था, you have to keep this in mind, a very important point, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप हीट करोगे तो आपको दो ही प्रोडक्ट देगा, CO2 गैस एंड H2O लिक्विड। और बैलेंस करने के लिए हमेशा ऑर्डर यही करने का, CHO इज द ऑर्डर टू बैलेंस द कंबशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक C4H10, ठीक है, ब्यूटेन ले लिया है मैंने, उसको कंबशन में डालना है तो O2 गैस दो ही प्रोडक्ट देगा हीट करने पे, दैट इज CO2 गैस एंड H2O लिक्विड। इफ आई बैलेंस दिस, कार्बन इज 4, सो 2 मोल्स यहाँ पर 4 मोल्स यहाँ डाल दिया मैंने, तो 4 कार्बन का हो गया। हाइड्रोजन 10 मोल्स है तो 5 डाल दिया ना, 4 2 10 प्लस 5 15, तो ऑक्सीजन विल बी 15/2। देखो 2 और 2 कैंसिल होगा तो 15 ऑक्सीजन बचेगा। सो दिस इज द कंबशन रिएक्शन फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो ये कंबशन रिएक्शन हो गया 1 मोल का। अब इसके लिए delta H value, obviously heat of combustion, standard of combustion for this is -2658 kilojoules per mole. मतलब 1 mole of butane when undergoes combustion, this much of heat is released from the system. So it's always negative in nature. ये हमेशा याद रखने का इसके अंदर। Okay, and also remember, as the number of carbon oxygen increases, बढ़ता है तो कंबशन का वैल्यू भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन का अगर मतलब मैं फाइंड करूं डेल्टा CH नॉट ऑफ मीथेन, सो मीथेन का होता है -890 किलो जूल्स पर मोल। ओके, नाउ डेल्टा CH नॉट अगर मैं बात करूं C2H6 इथेन गैस की, तो वो -1560 होता है। अगर वही बात करूं मैं डेल्टा CH नॉट ऑफ C2 या C6H6 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, C6H6 दैट इज बेंजीन, सो बेंजीन के लिए दिस वैल्यू कम्स अराउंड -3268 kilojoules per mole. So see, this much of heat is liberating as number of carbon and hydrogen is increasing. You have to remember this point. Okay, और एक चीज याद रखना कि इस केस में अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो भी थोड़ा ये कंबशन का वैल्यूज जो है वो बढ़ सकता है। So I'm writing here the different combustion, so you need to remember this. As carbon hydrogen increases, the combustion value will increase. So I'll clear this up.
This was all about the standard enthalpy of combustion. Okay guys, now let's talk about the next reaction, that is neutralization reaction. And in this, the enthalpy change will be called as enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो हम लोग उसको डेल्टा NEUTH लिख देते हैं, और अगर स्टैंडर्ड होगा तो उसको H0 भी लिख सकते हैं. ओके, so that is heat of neutralization of a reaction. Now what is the meaning of neutralization reaction? Simple, acid and base react together and they will neutralize each other, and in that case the heat evolved is called as neutralization reaction. मतलब ये समझना जरूरी है कि heat of neutralization हमेशा exo होने वाला है. Remember this is always an exothermic reaction. The heat will be given out. Now how it is defined as? It is defined as the enthalpy change when an acid base neutralize each other. But acid base किस तरीके से neutralization होगा ये हम लोग को जानना जरूरी है. An enthalpy change when there is a complete neutralization of 1 gram equivalent of an acid by a base and vice versa. So enthalpy change when 1 gram equivalent, okay, reaction when 1 gram equivalent of acid is neutralized, yeah, completely neutralized, you can say more precisely is completely न्यूट्रलाइज. मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं बेस से, और वहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए. तो इट्स एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय बेस और वाइस वर्सा. ठीक है. And if you remember from normality, normality is number of gram equivalent upon volume of solution liter, and number of gram equivalent क्या होता है? If you remember, number of gram equivalent is nothing but mass of a substance upon equivalent mass, और equivalent mass क्या होता है? molar mass upon basicity और acidity. Basicity is H plus और acidity is OH minus ions. It will go up, that is equal to mass upon molar mass into बेसिसिटी और एसिडिटी. तो बेसिसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ H प्लस आयंस, या एसिडिटी OH माइनस आयंस. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. सो व्हेन 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by a base or vice versa, we term it as what? Heat of neutralization. ठीक है. So number of gram equivalent of an acid reacts with number of gram equivalent of base, it gives you what? Heat of neutralization. Now you have to remember few points in it, guys. Remember that whenever you talk about a strong acid, okay, strong acid की हम लोग बात कर रहे हैं, तो strong acid हम लोग क्या ले सकते हैं? strong acid like HClO4, H2SO4, HNO3, HI, नाइट्रिक एसिड लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl, HBr, ये सब सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूंगा तो स्ट्रॉन्ग बेस में इफ यू रिमेंबर सीजियम हाइड्रोक्साइड, RbOH, then KOH, then NaOH, then SrOH twice, then BaOH twice. कभी कभार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी ले लेते हैं, but these are strong base. So you have to remember, whenever strong acid combines with strong base, when 1 gram equivalent of a strong acid combines with same amount of a strong base, then the heat of neutralization is always minus 57.1 kilojoule per mole or minus 13.7 kilocalories. Okay, kilo कैलोरीज पर मोल. मतलब इतना हीट लिबरेट होगा. तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करेगा, मतलब 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सो इतना हीट लिबरेट होता है. हमेशा याद रखना minus 57.1. मतलब if I say 1 gram equivalent of HNO3 reacts with 1 gram equivalent of NaOH, then this much amount of heat will be liberated. You have to remember this. लेकिन अगर आपने कॉम्बिनेशन लिया
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या तो हमने कॉम्बिनेशन लिया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या तो हमने कॉम्बिनेशन लिया वीक एसिड एंड वीक बेस, तो इन सब कंडीशन में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो हमेशा 57.1 किलो जूल्स या 13.7 किलो कैलोरी से कम होगा, मतलब कम हीट लिबरेट होगी इनसे। क्यों ऐसा, रीजन क्या है? बिकॉज रीजन ये है कि why the less heat is released, because the heat which remains inside the solution is used to ionize the weak component. For example, देखो आपको समझाता हूं मैं, एक एग्जांपल देता हूं. I'll take an example and explain it. For example, if I take ammonium hydroxide, ammonium hydroxide is a weak base. आप ammonium hydroxide को suppose react कर रहे हो किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर रहे हो, ओके? तो सपोज मैंने इसको रिएक्ट किया HCl से. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल गिव यू व्हाट, NH4Cl plus H2O. Now, इस रिएक्शन में ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बट इस रिएक्शन में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था दैट इज अराउंड 51 माइनस heat of neutralization is minus 51 point suppose 51.5, या 51.5 किलो जूल्स रिलीज हो रहा है. आप बोले सर 57 नहीं हो रहा है, 51.5 हो रहा है. सो इफ यू एनालाइज 57.1 माइनस 51.5, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं इसके अंदर से, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा दैट वैल्यू इज द हीट विच रिमेन इनसाइड. अगर वो अंदर है, मतलब इन द सेंस आई एम टेलिंग यू कि 57.1 माइनस 51.5 करोगे तो आपको 5.6 किलो जूल्स का हीट लिबरेट नहीं हुआ. तो ये 5.6 किलो जूल्स का हीट कहाँ है? ये 5.6 किलो जूल्स का हीट सोल्यूशन में है. वहां पर क्या कर रहा है? इट इज यूज टू आयोनाइज वीक कंपोनेंट. यहां पर वीक कंपोनेंट कौन है? NH4OH. मतलब पूरा हीट लिबरेट नहीं होगा, मतलब किसी वीक, समझो आपने एक वीक एसिड लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, हीट लिबरेट हुआ 50 किलो जूल्स. आप बोले सर 57.1 नहीं हो रहा है, 50 किलो जूल्स हो रहा है, तो 7.1 किलो जूल्स कहां गया? तो दैट 7.1 जूल इज यूज्ड अप बाय द सॉल्यूशन टू आयोनाइज द वीक कंपोनेंट. कीप दिस इन माइंड, वीक कंपोनेंट को आयोनाइज करने के लिए वो हीट एब्जॉर्ब हो जाता है. अगर आपने कोई भी एक कॉम्बिनेशन वीक लिया, अच्छा वीक एसिड वीक बेस लोगे तो और ज्यादा कम हीट लिबरेट होगी, बहुत कम होगी. बिकॉज बेसिकली एसिड बेस रिएक्शंस आर द रिएक्शंस ऑफ H plus and OH minus ions. तो वीक कंपोनेंट्स ज्यादा H plus या वीक बेस ज्यादा OH minus लिबरेट नहीं करता. इसके लिए पूरा हीट 57.1 लिबरेट नहीं होगा, उससे कम होगा whenever you take a weak component. तो वो हीट कहाँ गया? That heat remains inside the solution for the ionization of the weak component. मतलब इस केस में जो 5.6 किलो जूल्स का हीट लिबरेट नहीं हुआ है वो कहाँ है? वो सोल्यूशन में है. क्या काम कर रहा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस है उसको आयोनाइज करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमेशा याद रखने का इसके अंदर कि इन केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ neutralization when a 1 gram equivalent of strong acid and strong base, मतलब equal amount of strong acid strong base, or you can say equal amount of H plus and OH minus ions which when are produced by strong acid strong base, the heat of neutralization यानी heat liberated निकलेगा बाहर, बीकर गर्म हो जाएगा 57.1 किलो जूल्स और 13.7 किलो कैलोरीज. माइनस साइन इंडिकेट दैट हीट इज लिबरेटेड. लेकिन अगर उससे कम लिबरेट हो रहा है, मतलब ये दिमाग में डालना कि आपका कोई एक कंपोनेंट वीक होगा और वो कम हीट, जो हीट रह गई सोल्यूशन में, वो वीक कंपोनेंट को आयोनाइज करने के लिए यूज होगी. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, C part. I'll clear this up. We'll move on to the next part. Now next is, let's talk about bond enthalpy. Bond enthalpy is denoted by delta bond H. Now what is this bond enthalpy basically? So simple है, the enthalpy which is accompanying with the breaking and making of bond in a chemical reaction, that is called as what? Bond enthalpy. अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ना डिटेलिंग देखते हैं कि bond enthalpy हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसा बताएंगे. तो मैं पहले लिख लेता हूं कि enthalpy necessary to break a particular bond,
in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atom is called as bond enthalpy. सिंपल है, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी चेंज is enthalpy change to break 1 mole of gaseous molecule into gaseous atom. सिंपल, ठीक है, और वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी ना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू ब्रेक H2 गैस, उसको हीट किया, ब्रेक किया, तो मुझे क्या मिलेगा, H गैस प्लस H गैस. सो ऑब्वियस बात है, हियर द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, द बॉन्ड एंथैल्पी विल बी इक्वल टू व्हाट, 436.4 किलो जूल्स. मतलब इतना एनर्जी लग गया है कि 1 मोल ऑफ द बॉन्ड, मतलब 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, दैट इज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को उसके एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक करने के लिए. ओके, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन गैस, मुझे इसको ब्रेक करना है इसके एटॉमिक फॉर्म में, तो फॉर्म Cl गैस प्लस Cl गैस. तो योर द बॉन्ड एंथैल्पी, या यू कैन से द स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी जो निकलेगा रिएक्शन का, दैट इज 242.7 किलो जूल्स पर मोल. मतलब 1 मोल ऑफ क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए इतना बॉन्ड लग रहा है, एंथैल्पी लग रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया. ओके, तो बेसिकली ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल टू हीट ऑफ एटमाइजेशन. मतलब ये दोनों को हम लोग डेल्टा एटम एच, दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं. मतलब आपने उसको ब्रेक करके एटम में कन्वर्ट किया, ठीक है. तो ये तो बात हो गई किसकी, डायटोमिक मॉलिक्यूल की. लेकिन सपोज मैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहा हूं. ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, अगर वाटर की बात करूं तो इसको मैं 2 स्टेप में ब्रेक कर सकता हूं, HOH. फर्स्ट स्टेप में एक OH बॉन्ड ब्रेक होगा टू फॉर्म H गैस प्लस OH गैस, और यहां पर जो एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने में, स्टैंडर्ड एनर्जी 499, सपोज 499 किलो जूल्स की है. फिर ये जो OH बचा है इसको भी गैसियस फॉर्म में ब्रेक करके मैं H और O में कन्वर्ट कर दूंगा गैस के. तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी वो होगी 428 किलो जूल्स. सो अगर मैं पूछूंगा पूरे वाटर को ब्रेक करने के लिए कितना एंथैल्पी लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2O, मतलब पूरे वाटर को ब्रेक करने के लिए, विल बी एवरेज ऑफ ईच ब्रेकिंग ऑफ ईच OH बॉन्ड. तो उसका एवरेज निकालूंगा तो मुझे एवरेज मिलेगा 463.5 किलो जूल्स का. तो ये होती है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी अगर आपने ट्राइएटॉमिक या टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ले लिया. ओके, सो when you break a diatomic molecule the bond enthalpy is equal to heat of atomization, क्योंकि आप 2 एटम को सेपरेट कर रहे हैं तो उसको heat of atomization भी बोलेंगे. लेकिन समझो हम लोग 3 एटम्स को सेपरेट कर रहे हैं तो एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हम लोग उस टाइम पे वी टेक अ एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल्स. एवरेज बॉन्ड एनर्जी मतलब वी विल ऐड दो, समझो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आप 3 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो यू विल ऐड डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 डिवाइडेड बाय 3, यू विल गेट एवरेज बॉन्ड एनर्जी. तो वाटर के लिए हम लोग जो बॉन्ड एंथैल्पी लिखते हैं, जो उनके एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, वो एवरेज लिखते हैं. लेकिन क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल. सिंपल इनको आप ब्रेक करके किस में कन्वर्ट, यहाँ पर एक ही बॉन्ड ब्रेक करना होता है. तो जब एक ही बॉन्ड ब्रेक करना होता है और एटम्स में कन्वर्ट करने होते हैं तो हम लोग उस बॉन्ड एंथैल्पी को हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप उसको एटम में कन्वर्ट कर रहे हो. तो ये था डायटोमिक मॉलिक्यूल और ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल. बट गाइस, व्हाट अबाउट द टोटल बॉन्ड एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन. तो गाइस, अब डायटोमिक और ट्राइटोमिक ये सब को हटा के अब एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में टोटल बॉन्ड एंथैल्पी करते हैं कैलकुलेट. तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात. आई विल क्लियर दिस अप. You have to understand first thing, listen to me carefully. एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड प्रोडक्ट बॉन्ड्स आर फॉर्म. कीप दिस इन माइंड. और ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बनते हैं. ओके, सो इन केस ऑफ एनी chemical reaction we can say
रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ओके, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, एंड प्रोडक्ट के बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं। अच्छा, जब रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तब एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब हीट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। और जब प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म हो गया, ऑब्वियसली व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म एनर्जी इज रिलीज, सो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज्ड, ओके। सो अगर मैं बात करूं कि बॉन्ड एनर्जी फॉर द एंटायर रिएक्शन, मतलब इफ आई जस्ट राइट डाउन हियर कि बॉन्ड एनर्जी फॉर द एंटायर रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का अगर मुझे बॉन्ड एनर्जी फाइंड करना है तो मैं लिख सकता हूं कि इन दिस केस इट इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है, रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एंड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब, कब एब्जॉर्ब होगा, ड्यूरिंग बॉन्ड्स ब्रेकिंग। बॉन्ड्स ब्रेकिंग कहाँ होगा, रिएक्टेंट में। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोडक्ट में। ये हम लोगों को याद रखने का। बट मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसके अंदर, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। और वो सिंपल क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है जब रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जब ब्रेक करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जब रिएक्टेंट मिलके बॉन्ड बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, तब एनर्जी रिलीज होगी। बट याद रखने का, एनर्जी रिलीज जितनी होती है उतनी ब्रेकिंग के भी हो सकती है यूज। मतलब मैं अगर सिंपल चीज ये लिखूं इस केस के अंदर कि इन केस ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बनता है, सपोज मैं आपको पूछ रहा हूं कि ए और बी आपस में मिलके ए बी बना रहे हैं, मतलब ए और बी बॉन्ड फॉर्म हुआ। जब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ तब एनर्जी रिलीज हुई एक्स किलो जूल्स, सो माइनस एक्स किलो जूल्स लिखता हूं। अगर यही बॉन्ड को ब्रेक करना है, मुझे ब्रेक करना है, तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो आप बोलेंगे प्लस एक्स किलो जूल्स। सिंपल है। मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहां पर लिख रहा हूं एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसकी जगह पे लिख सकता हूं मैं सिंपल माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब, है ना, ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ प्रोडक्ट। देखो बराबर, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जितनी एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड बनने के लिए, उतनी एनर्जी आपको चाहिए बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, सिर्फ साइन कन्वेंशन अलग होगा। अच्छा, इसकी जगह पे मैं वही लिख रहा हूं, एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो मैंने दोनों को बॉन्ड ब्रेकिंग में लेके आ गया, आप समझ रहे, बॉन्ड फॉर्म की जगह पे प्रोडक्ट का बॉन्ड ब्रेक लिख दिया, लेकिन साइन कन्वेंशन अलग ले लिया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे किसी भी रिएक्शन की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो दैट बॉन्ड एनर्जी विल बी, बराबर देखना, summation of, we can write down summation of enthalpy of reactant, मतलब the energy absorbed during the bond formation of reactant minus summation of delta H naught of product। तो खाली यही एक फॉर्मूला है, बॉन्ड एंथैल्पी का ये फॉर्मूला है जहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बट हर जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। क्यों ऐसा हुआ वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे दोनों भी एब्जॉर्ब में चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट की, लेकिन वही प्रोडक्ट को आप ब्रेक करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो साइन कन्वेंशन अलग अलग हो जाते हैं, दैट्स द रीजन यू विल गेट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। जैसा अब इसको अप्लाई कैसा करेंगे, एग्जाम्पल, एक रिएक्शन दिया, सिंपल रिएक्शन है, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन की मुझे बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, मतलब बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। तो क्वेश्चन में अगर बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी बता तो इट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो देखो कैसा निकालोगे, हमेशा मैं एक ये क्लियर करके, ओके, ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया, क्लियर दिस अप। आई विल यूज दिस पार्ट फॉर द कैलकुलेशन टू शो यू हाउ टू डू द कैलकुलेशन।
सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि बॉन्ड एनर्जी फॉर द एंटायर रिएक्शन या बॉन्ड एंथैल्पी लिख के आ गया एंटायर रिएक्शन का, तो वो हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, बाकी सब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ओके तो देखो ये एग्जांपल दिया है मैंने, तो इस रिएक्शन की मुझे बॉन्ड एंथैल्पी है, तो मुझे क्या दिया रहेगा पता है, वो क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया रहेगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, समझो स्टैंडर्ड दिया हुआ है CH बॉन्ड इज X, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज Y, सपोज ऐसा दिया है, देन ये दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन के अंदर, गिवन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O is Z and bond enthalpy of OH bond is A। तो देखो पहले मैं इस रिएक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना, तो इस रिएक्शन को मैं ऐसा लिखूंगा उनके बॉन्ड्स के फॉर्म में, CH4 4 CH बॉन्ड है यहाँ पर रिएक्टेंट में, प्लस O डबल बॉन्ड O, हमेशा ऐसा लिख देने का, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड HOH। तो बराबर देखो, अगर मैंने फाइंड किया है कि आप बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, सो द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कौन से बॉन्ड है, CH बॉन्ड है और O डबल बॉन्ड है। CH बॉन्ड कितनी टाइम है, 4 टाइम है, तो आई विल राइट डाउन हियर 4 इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ विच बॉन्ड, CH बॉन्ड, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O बॉन्ड, माइनस 2 इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, प्लस देखो 2 OH बॉन्ड है तो 2 इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4 इनटू X प्लस O2 के लिए लिया था Y, माइनस 2 इनटू CO के लिए हम लोग ने क्या लिया था, CO के लिए हम लोग ने लिया था Z, तो 2 इनटू Z प्लस OH के लिए क्या लिया था A, 2 इनटू A, जो भी वैल्यू आएगी सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकाल दो, दैट विल बी इन किलो जूल्स पर मोल। सो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना, पहले उसको ओपन करना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। मैंने रीजन बताया था, हमको दोनों जगह एब्जॉर्ब चाहिए, तो एब्जॉर्ब दोनों जगह चाहिए, तो फिर एक को आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो हमने प्रोडक्ट को नेगेटिव कर दिया, इसके लिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो गया। ओके सो दिस इज बेसिकली द बॉन्ड एंथैल्पी of any kind of a reaction. Okay guys, now I will make you understand few important points which are required for MCQs. I'll clear this up. इसमें हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे। सबसे पहला मैं बात करूंगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड की। okay? मतलब कौन से फूड कंज्यूम करने से कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो सकती है कैलोरीज में, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड बोलते हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेल्टा H अपॉन मोलार मास ऑफ फूड, जो भी दिया है। किसी का भी आपको कैलोरी निकालना है, चाहे वो फूड हो फ्यूल हो, फूड का भी निकाल सकते हो, और सिमिलरली लिख देता हूं मैं वैल्यू ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और फ्यूल, मतलब कोई भी फ्यूल से या फूड से जब वो कंबशन में जाएगा बॉडी में, तो कितनी कैलोरीज लिबरेट हो सकती है, या कितनी कैलोरीज हम लोग को मिल सकती है। बेसिकली कैलोरीज नथिंग बट द हीट एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं फूड ले लेता हूँ, फूड और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू, ओके, कैलोरीफिक वैल्यू इन किलो जूल्स पर ग्राम। तो जैसा मैंने लिया है कर्ड, सो कर्ड की कैलोरीफिक वैल्यू 2.5 किलो जूल्स, 1 ग्राम कर्ड 2.5 किलो जूल्स का एनर्जी कंबशन में देगा। इफ आई टॉक अबाउट मिल्क, तो मिल्क इज 3.2, एग तो ये हमको कितनी कैलोरीज देता है, 7.3। देन मीट, सो मीट गिव्स यू अ कैलोरी ऑफ 12.0 किलो जूल्स पर मोल। ओके, हनी कॉम्प्लेक्स शुगर है तो 13.3 किलो कैलोरीज, घी 37.6, फैट से तो बहुत ज्यादा कैलोरीज दे रहा है। अब फ्यूल की बात करो, सो फ्यूल की अगर बात करूं तो सेम हम लोग कैलोरीज किलो जूल्स पर ग्राम में लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वुड, तो वुड कितना लिबरेट करता है, 17 किलो कैलोरीज किलो जूल्स पर ग्राम। अगर बात करते हैं हम लोग चारकोल, तो चारकोल कितना दे सकता है, 33, ज्यादा हीट दे रहा है। केरोसिन इट गिव्स अराउंड 48। फिर उसके बाद में फ्यूल ऑयल, तो फ्यूल ऑयल हमको देगा अराउंड 45। देन ब्यूटेन, ब्यूटेन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर्स,
जिसमें 55 का एनर्जी मिलेगा, और सपोज आपने लिया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज अ फ्यूल कंबशन which gives you 150 किलो जूल्स पर ग्राम। सो ये सब इनकी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। एंड याद रखना, इन केस ऑफ फूड, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट्स इज ग्रेटर देन प्रोटीन इज ग्रेटर देन कार्ब्स। मतलब प्रोटीन कार्ब्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं, प्रोटीन को ब्रेक होने में बहुत टाइम लगता है, तो उसमें ज्यादा कैलोरी लिबरेट होती है, और फैट में तो बहुत ही ज्यादा लगता है। फैट्स प्रो एंड कार्ब, यू रिमेंबर दिस। So these are the calorific value of food and fuel. Remember this, okay? And one more basic point is determination of resonance energy. कभी आपको resonance energy calculate करने बोला तो उसका फॉर्मूला याद रखना कि resonance energy will be equal to experimental, ठीक है, और actual heat of formation of a compound minus calculated heat of formation of a compound. Okay, मतलब delta FH experimentally, that is observed value, minus delta FH calculated value. सब्ट्रैक्ट करोगे, रेजोनेंस एनर्जी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का है तो बेंजीन का एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है और कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट अ रेजोनेंस एनर्जी। रिमेंबर दिस, ओके? So this was about the type of reaction, all डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में हम लोग कौन सी हीट एंथैल्पी साइन यूज करते हैं, कैसा कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने सब आप लोगों को बताया। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जब फिजिकल प्रोसेस होते हैं तो वो टाइम पे हीट चेंज क्या होती है, तो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस बता दूंगा और उसमें कौन सी हीट चेंज होती है। फिजिकल प्रोसेस लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फिर उसके बाद में सॉल्यूशंस, हाइड्रेशंस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आप लोग ने पढ़ रखा है सब, वो सब मैं खाली एक बार आपको रफली डिस्कस करके बता दूंगा कि इन फिजिकल चेंज एंथैल्पी में डिनोशन कैसा होता है एंड व्हिच आर द डिफरेंट फिजिकल चेंज। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।